हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आया हूँ उटेकर फिशरीज़ में और यहाँ पे मैं आपको एक मेड इन इंडिया फ़िश फूड ब्रांड है और इसमें प्लांट फर्टिलाइज़र्स और मेडिसिन्स भी है, बिग रिवर। तो उसके सब प्रोडक्ट्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम इसके ओनर से बात करते हैं। हाय विजय सर, हेलो। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? फाइन फाइन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर फ्रेश वाटर का सब फिश फूड्स एंड एक्वास्केप के मैं ये बोल सकता हूँ प्लांट फर्टिलाइजर्स के लिए। और ये रेंज में देख रहा हूँ बहुत सा इसमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन्स भी है, राइट? एग्जैक्टली। या और मैं एक पूछना चाहूँगा राइट नाउ अभी फिश फूड्स का जो आपने जो लॉन्च किया है वो है, ये पर्टिकुलरली मतलब कितना टाइम से रिसर्च चल रहा था इस फ्रेश वाटर के लिए आपका? सी हम लोग का जो रिसर्च व्हेन इट कम्स टू फूड एडिटिव्स मेडिसिन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 4.5 5 years. अच्छा। So Big River is also marketed by Aravana Automation, which is the same company as the company which markets Reef King. अभी Reef King तो आप जानते ही हो, it's one of the top brands in India now when it comes to marine aquariums. He started exports also there. So हम लोग ने marine range was launched I think 2.5 years back, ओके। 2.5 years back. That is now set. So we scaled up the capacities so that we can launch the freshwater range also. The entire freshwater range is called Big River. ओके So ओके। it's part of it's a sister concern basically. And the reason we took so much time is one is the R&D part, and all of these are made in India. Like not just the product, if you look at even the packaging, all these packaging, everything is done by us. या। So it's done in our factory in Taloja. ओके ओके। सो इनके खुद के ही फैक्ट्री में सब ये Yes. पैकेजिंग हुआ है। तो बहुत अच्छा फिनिशिंग है, मतलब एकदम इम्पोर्टेड ऐसा लग रहा है, फिश फूड ब्रांड है। No, it's better actually. If you see the quality of the यस। print, the quality of the material, और सारे products, all the packaging are actually food grade. लोग क्या करते हैं, फिश है हम लोग कुछ भी पैकेजिंग में दे सकते हैं, they put it only in plastic and other things. No, this is proper. No, if you buy a packet of makhana, या। उसका जो पैकेजिंग आता हाँ। है एंड उसका जो फिनिश आता है, द केयर विच इज टेकन इन द फैक्ट्री, द सेम थिंग इज टेकन फॉर द फिश फूड ऑल्सो, ओके both for Reef King and Big River. And if you actually see the efforts that we take on the overall packaging front, is we are the only ones who actually make sure that it's air flushed out, ताकि the freshness of the packet is always retained. It's a proper zip lock, या। so that आप एक बार फीड करने के बाद all you have to do is take out the air and seal it out. It will be fresh forever. Yeah. And we also, if you actually see, since we also do medicines, we have our FDA as well as FSSAI license for this. Okay. So all the precautions and all the safeguards that our fishes deserve, and I'm not saying that हम लोग करते हैं, no, everyone should follow that, because these are our pets. We get them home with a lot of responsibility. We should shower that love and care on them. So we Yeah. take care of all those things in each and every small aspect of the product. या। सो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे आप इधर बताइए, फिर हम बाहर भी जाके कुछ फिश फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनका वैसे ये कितना शेल्फ लाइफ कितना रहेगा? See, all our products come with a shelf life of 2 years. Okay. And we, since it's completely manufactured by us and packed by us, everything is done in house. We basically do batches based on demand. Okay. So at any given point of time, you go and pick it up from any of the online stores or a physical store dealers. You will find fresh packets at all time. ऐसा नहीं कि import करके पड़ा हुआ है 2 साल तक वही चला रहे, नहीं. Yeah. So we match the demand and the production. So Okay. you will always find fresh food packets and fertilizers, additives, that whatever that we are talking about. Okay. Broadly, अगर हमारे product range in Big River, if we have to classify, एक तो है species specific food. हाँ, अलग We अलग do fishes not के। generalize. Yeah. Every fish, genetic is different. They have a different dietary requirement. Like for example, we have 2 different types of food for cichlids, the Okay. omnivores and the herbivores. So we have a specific food for discus. We have 2 specific food for goldfishes. One is floating, one is sinking. And similarly, we have
food for betta. बेटा, वाह। We have a range for betta. ये food है. हाँ, That we have this. escape I think a nourish. lot of your audience who are aquascapers would appreciate that algae problems and uneaten food जो रहता है. हाँ, This food is meant specifically for smaller breeds in an aquascaping environment. Okay. जहाँ पे phosphate level is slightly on the lower side, without without compromising on the dietary requirements of the fish. Okay. तो आपका algae problems नीचे रहता है and food ज़्यादा consume हो जाता है पूरा, मतलब you will not have wastages. Alright, so this is Cape Nourish. What this does is aquascapes require a particular type of food, which is a new concept in itself. But the fishes we generally use in aquascape, the tiny ones like your tetras, your asboras, and the corridoras, and the guppies, and all those things, what they eat in the wild has to be replicated. The bite size has to be replicated. When you replicate that, there will be no wastage. And if you see the composition, Antarctic krill, shrimp, spirulina, tubiflex worms, of course your carotenoids and the vitamins, this is what these fishes require. What I'm going to do is, let me just feed this tank. I just fed the tank, but let me feed it again. What you need to observe is how this food actually stays on the top. Observe the bite size and the acceptance that the fishes, the way they love it, which ensures your scape is always detritus free and free of algae. This is the size. सो बहुत से यहाँ पे इनके प्लांट फर्टिलाइजर्स है यहाँ पे, और ये एक एक करके हम बताएंगे। तो मैं आपको एक पहले पूछना चाहूँगा कि इसमें भी आपका कुछ ऑल इन वन फर्टिलाइजर्स भी है? वो बहुत डिमांड में है, बहुत हाँ। लोगों को चाहिए कि एक सिंगल फर्टिलाइजर आप आपके टैंक वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ पंप्स मार लो एंड मूव ऑन इन लाइफ। वो है, इट्स कॉल्ड ऊनोफर्ट। ओके। तो बेसिकली उसमें माइक्रोस, मैक्रोस, ट्रेस सब कुछ प्री मिक्स्ड है इन चेलेटेड फॉर्म। अच्छा। कुछ वो क्रॉस रिएक्शन वगैरह नहीं होगा। हाँ। एवरीथिंग विल बी अपटेकन बाय द टैंक। ओके। सो ऑल इन वन फर्टिलाइजर इज ऊनोफर्ट। और ये जो है यहाँ Yes. पे, yes. और ये यूज भी हो रहा है राइट यहाँ पे एक्वास्केप में, उटेकर में भी? हाँ, यहाँ के सारे टैंक्स ऊनोफर्ट, ओमनी माइक्रो, ओमनी मैक्रो, फेरोबूस और कार्बोस्केप में चल रहा है। दैट इज अ रेंज। ओके ओके। देन कम्स हमारा ओमनी मैक्रो एंड ओमनी माइक्रो, अच्छा। 2 पार्ट फर्टिलाइजर। हाँ। जो आपको मतलब बेस्ड ऑन आपके टैंक के रिक्वायरमेंट्स, आपके लोड के हिसाब से एडवांस स्केपर्स जो मैच करना चाहते हैं। हाँ। सो वी हैव अ 2 पार्ट वहाँ पे। ओके। जनरली सारे टैंक में आयन लगता है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड फेरो बूस्ट, which is completely fully bioavailable iron। वो कुछ आयन जो रेड कलर का लिक्विड कलर डाल के देते हैं वो नहीं है, प्रॉपर आयन है जो फुल बायोअवेलेबल है ये। ओके। एंड ऑब्वियसली वो जो लिक्विड कार्बन डोज करना पड़ता है टू रिमूव द algae ऑन द लीफ। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर CO2। मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर CO2। Okay. उसका मेथडोलॉजी अलग है, बिकॉज आई लाइक टू शेयर द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। So we have Carboscape, and that's our range. So we have Omni Micro, Omni Macro, 2 part, Unofert, which is a 1 part, yes, Ferro Boost, which is basically your iron, and Carboscape, which is your carbon. Okay. So ये सब 150 ml के, right? नहीं, these are 220 ml. 220 ml, wow. So we like to give the 20 ml extra. Yeah. So these are all 220 ml bottles. Okay. तो वो हो गया आपका fertilizer range. हाँ. Then we have one of the most important product when it comes to aquarium keeping. अगर आपका बैक्टीरियल कॉलोनी बायोम बराबर नहीं है तो आपका टैंक स्टेबल नहीं होगा, बराबर, एंड बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा. सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया फॉर फ्रेश वाटर टैंक्स, नॉट जस्ट aquascaping. It is a mix of aerobic and anaerobic bacteria
and both nitrate, no, organic consuming and phosphate consuming, which is basically your detritus and uneaten food and all those things. Okay. So ये दो काम करता है, आपका साइक्लिंग एंड फिल्ट्रेशन बराबर रखेगा और आपका अनवांटेड डेट्राइटिस कंज्यूम भी कर देगा. सो यू कैन डोज इट रेगुलरली, नॉट जस्ट फॉर साइक्लिंग. ओके ओके, सो ये है सुपर स्टार्ट करके Yes. बायोम बूस्टर. Then this is a very standard product which every aquarium user requires. Chloronil. क्लोराइड. टैप वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका क्लोरीन, क्लोरामीन, हेवी मेटल्स तीनों निकलना चाहिए. ओके. एंड वी हैव एडेड some conditioner also to it. It's not only a chlorine remover. There are kelp extracts also added to this. ओके, सो ये भी एक अच्छा है क्लोरीन रिमूवर. क्लोरोनिल एक्वा प्लस वाइटल. And next है aqua clarity. ओके. यार हम लोग aquascaping या फिश कीपिंग क्यों करते हैं? नो यू वांट टू सिट डाउन. हमेशा गुरु बोलता हूँ ना कि फिश कीपिंग शुड बी कि आप एक कॉफी का कप लेके यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर टैंक एंड एंजॉय. हाँ. अगर वो टैंक क्लियर नहीं है हाँ तो आप जाके उसको छेड़ोगे. बराबर. सो दिस इज नथिंग बट अ टैंक क्लैरिफायर. आपका पानी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा. जो भी सस्पेंडेड बैक्टीरिया, डेट्राइटिस जो है वो सब बाइंड होके आपके मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के अंदर चला जाएगा. सो वाटर विल बी क्रिस्टल क्लियर. So this is aqua clarity. ये इफेक्ट दिखता है इसका. It starts working within immediately and it will clear up your tank within 20-30 minutes. ओके 30 मिनट्स. ओके. And one of the very crucial product which you should always have in hand. एमोनिल. Ammonia spike जब होता है ना, हाँ. we fish keepers get a mini heart attack. यस. So ammonia neutralizer is a बोलते हैं ना वो लाइफ सेवर है. ये हाँ. हर एक एक्वेरियम कीपर के पास अपने कैबिनेट में होना चाहिए. अगर लग रहा है कि अमोनिया स्पाइक हो रहा है, हाँ. या जब आप कोई मेडिकेशन डोज कर रहे हो, हाँ. वो आपके बैक्टीरियल कॉलोनी को हिलाएगा ही हिलाएगा और अमोनिया स्पाइक होगा ही होगा. तो अमोनिया न्यूट्रलाइजर इज वन थिंग दैट वी हैव. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस वाइप. न्यू फिशेस ऐड कर रहे हो. नया फिश आप ऐड कर रहे हो या वाटर चेंजेस जब कर रहे हो, हाँ. या टैंक में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ जैसे अमोनिया स्पाइक हुआ या कुछ जो भी वाटर प्रॉब्लम है, चेंज कर दिया. पहला चीज जो होता है फिशेस विल कम अंडर स्ट्रेस. यस. सो दिस इज टू डी स्ट्रेस फिशेस कंप्लीटली. बेसिकली इसमें वो है एलमंड लीव्स वाटर रहेगा या कुछ और? इट्स अ मिक्स ऑफ टैनिन्स, इट्स अ मिक्स ऑफ एलोवेरा. वो कोट पूरा मतलब वो रिक्रिएट करेगा और अगर कहीं पे फिन टायर्स या टायर्स कहीं पे उसको हील करेगा. अच्छा. ओवरऑल स्ट्रेस लेवल नीचे लेके आएगा. सही है, ये भी अच्छा है. सो दीज आर मोर और लेस योर मेंटेनेंस सीरीज. हाँ. उसके बाद स्पेशलाइज सीरीज में जाने से पहले देयर इज वन प्रोडक्ट व्हिच इज नथिंग बट टैनिन्स. टेनिन्स. ओके. राइट, देयर आर सो मेनी क्रीचर्स हु रिक्वायर अ स्लाइटली लोअर पीएच, यस. स्लाइटली हार्डिश वाटर, हाँ. है ना. तो tannins is something that we have. Then if we go specific to individual fishes, I love this product personally. Beta heaven. Bettas are such a beautiful fish, Yeah. often mistreated, which I don't like. So we have a specific food for betta and we have a Yeah. specific conditioner for betta, which basically replenishes the water with जो बेटा जो नेचुरल एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है ना, हाँ. जो मिनरल्स चाहिए, जो पीएच चाहिए, जो टैनिन्स चाहिए, इट इज अ ब्लेंड ऑफ इट. Yes. तो ऑल यू हैव टू डू इज ऐड अ स्मॉल अमाउंट टू योर वाटर. आपका बेटा विल बी कंप्लीटली इन अ रिलैक्स स्टेट, द वे इट शुड बी नेचर में जैसे रहता है. ये देखिए, ये भी 220 ml का, राइट? एवरीथिंग इज 220 फॉर अस. तो ये अच्छा क्वांटिटी में. वी डू 120, 220 ओके. एंड देन वी डू 500 and 1 liter फॉर पब्लिक एक्वेरियम्स. ओके. देन कम्स सबका फेवरेट श्रिम्प ट्रेस. श्रिम्स. अगेन हम लोग टैंक में छोड़ देते हैं, प्लांटेड टैंक हो, स्पेशली इन प्लांटेड टैंक. उसके बाद उसको जो रिक्वायर्ड मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसका मोल्टिंग बराबर नहीं होता है, ब्रीडिंग बराबर नहीं होता है. इसके लिए वो श्रिम्प मल्टीप्लाई होता है, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट्स लुकिंग बैड, देन पीपल डिस्कार्ड. वो सब इज नॉट नीडेड. ऑल यू नीड टू डू इज श्रिम्प का जो फूड है उसको सोक करके यू कैन फीड और यू कैन डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट इन द टैंक ऑल्सो.
ओके सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर श्रिम्प्स। टैंक्स में जो हमको तंग करता है वो है, एक है प्लेनेरिया हाँ और दूसरा है ब्लैडर स्नेल्स। हाँ द वे हमारा स्नेल न्यूक वर्क्स, व्हाट वी एडवाइस इज, आप कहीं से भी प्लांट्स लेके आ रहे हो, हाँ पहले उसको डिप कर दो हाँ एक जगह अंदर जाने से पहले। यस यस एक टब में या किसी एक टब में एट दिस डोसेज इज मेंशन्ड हियर, हाँ आप उसको छोड़ दो हाफ एन आवर 45 मिनट्स, जो भी स्नेल लार्वे हैं वही के वही निकल जाएंगे। सब जंगली स्नेल जो मोस्टली आते ही है ब्लैडर बारिश स्नेल्स में भी प्राइमरी, हाँ एग्जैक्टली। अगर आपके टैंक में भी प्रॉब्लम है आप डोज कर सकते हो, बट डू नॉट डोज दिस अगर श्रिम्प्स है। ओके ओके नॉट फॉर अगर श्रिम्प्स है तो टैंक में मत डोज कीजिए आप। अच्छा अच्छा अडॉप्ट सम डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट दोज ब्लैडर स्नेल्स, गेट assassin snails, as simple as that, है ना। वो भी अच्छा है तो ये दिस इज फॉर डिपिंग पर्पसेस एंड Yeah. ट्रीटमेंट जहाँ पे स्नेल्स अदर इनवर्ट्स नहीं है। ओके प्लेनेरिया, प्लानेरिया प्लेनेरिया effective within 72 hours, ओके is what we target. Planaria nuke is something that we have अगर प्लेनेरिया आ गया तो, but my advice to all your viewers, अगर प्लेनेरिया आ रहा है that means you're overfeeding. ओके Usually 99% correlation रहता है उसका। अच्छा ओवर फीडिंग हो रहा था फीडिंग कंट्रोल में रखो तो प्लेनेरिया नहीं आएगा। अगर प्लेनेरिया आ गया, यूज द प्लेनेरिया न्यूक, एट द सेम टाइम रिड्यूस द फीड। So these are some of the products that we have. Yeah. Apart from that, जो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा है, और we have a range for turtles. ओके That is primarily turtle के conditioners, हाँ turtle के medication, अच्छा and overall turtle का general well-being का liquids. And one product which is still under packing, I wanted to give that to you also to personally try out. We are coming out with our terrarium fertilizers and paludarium fertilizers. Wow. जो आप सीधा स्प्रे कर दो, Wow. one spray in a week, and keep it away from the water जिस दिन आप स्प्रे कर रहे हो ideally. That's all you need to do for your beautiful terrariums. Wow. So that also will come in the next week. अभी पैकिंग में है फिलहाल वो। अच्छा है तो बहुत से अमेजिंग रेंज है फिश फूड्स और प्लांट फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन्स के भी, और कुछ हम एक एक फिश फूड के बारे में कुछ बताएंगे बाहर जाके कुछ टैंक्स में, और प्लांट फर्टिलाइजर्स भी हम लेके जाते हैं बाहर। We'll start with the fertilizer. लेके Yes, जाने की yeah. जरूरत नहीं है, यहाँ का जो टैंक है इट इज हाँ. रनिंग ऑन आवर फर्टिलाइजर्स। Yes, तो yes. ओपन बॉटल्स वहीं पे रखे हुए हैं। हाँ तो वहाँ एकदम आपको दिखाता हूँ मैं अभी वापी जो पड़े बॉटल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए फिर देखते हैं। सो हम लोग अभी जस्ट बाहर के सेक्शन में आए हैं, और ये अभी टैंक जो मेरे ख्याल से ये 4 फीट रहेगा ना। ये 4 फीट वाला टैंक है, हाँ एंड ये चल रहा है मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल आवर फर्टिलाइजर्स। ये देखिए यहाँ पे सब रखा हुआ है इन्होंने, इनफैक्ट ये यूज़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो उनोफर्ट है इसमें, और फेरो बूस्ट है, और कार्बोस्केप है। I'll tell you what has happened here. Yeah. जो उतेकर का head aquascape Akshay, हाँ he is not well. He's a very very good friend. So Yeah. I pray that he gets well soon. So वो omni micro macro वो डोज कर रहा था, बट लास्ट 2-3 हफ्ते से ही इज नॉट देयर. सो द टैंक इज प्राइमरली रनिंग ऑन UnoFert. सो हाँ it's primarily running on UnoFert and बाकी FerroBoost and Carboscape. That's ओके it. ओके So मेंटेनेंस भी ज़्यादा हुआ नहीं है, बट एंड चिलर भी नहीं है इसमें. हाँ Despite of that, you can see the way the carpet has nicely grown out. यस यस फिर ग्रीनरी दिख रहा है प्रॉपर। तो ये टैंक पूरा इसमें अभी चल रहा है. हाँ हाँ इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस टैंक, ऑल द स्केपिंग हाँ, टैंक्स बैक साइड में जो भी भी एक है tank है। has been Yes, running on our fertilizer for quite some time now. ये देखिए ये भी एक अच्छा सा इन्होंने ये बनाया। अभी रीस्केप हो रहा है. आई थिंक ये 3 टैंक रीस्केप हो रहा है अभी. ओके ओके ये एक रिस्केप हो रहा है ना, बड़ा टैंक है ये रीस्केप हो रहा है बिकॉज वी चेंज द लाइट. हाँ These are again our Big River lights. Yeah. जो पुराना नाम अरवाना स्पेक्ट्रोग्लिफ में है अभी भी हाँ standing. हाँ तो लाइट्स का भी अच्छा इनका रेंज है, और ये सब ऐप बेस्ड लाइट्स है। हाँ, एवरीथिंग इज ऐप और कंट्रोल. मैंने भी मेरे टैंक्स में यूज़ किया है, अच्छा रिजल्ट आया है। और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे, अरवाना स्पेक्ट्रोग्राफ के। और चलिए फिर जाते हैं अपन। हाँ, और we'll talk about the foods. Yes, I yes. think यहाँ पे
all the tanks are pretty much being fed. अरे यहाँ पे यूज भी कर रहे लोग, यहाँ पे हाँ। ओपन रखे हुए थोड़ा पैकेट। cichlids को डाल के भी देखते हैं। I think you already yes. seen a few of the cichlid ones, but हाँ cichlids are always hungry, तो या अपन और ये थोड़ा ये देखिए, ये ऐसे रहते हैं ओमनी चाव, omni chow और ये सिंकिंग है। and one more this thing is जो इंसानों के खाने में यूज करते हैं, that is the quality of the oxygen absorber that we use Okay. in fish food. ओके ओके। तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हम लोग। हाँ। सो लेट्स पुट, लुक एट द वे दिस गाइस जंप। यस यस, ये देखिए फटाफट खा रहे हैं। इसमें टेक्सास सिकलेट भी है और बाकी इसमें ग्रीन टेरर भी है। फिशेस जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और अच्छा ये है क्वालिटी का फिश फूड ये। और हर एक फिश पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स ये लिखा है ना, सब फैक्ट्स कुछ। भी लिखा है ना, फन फैक्ट। फन फैक्ट्स रहेगा उसमें, Yes. क्या क्या हम लोगों ने इंक्लूड किया है। हाँ। जैसे सिक्लिड्स आर ओमनी सिक्लिड्स जो होते हैं, ओमनी और सिक्लिड्स हाँ are more carny oriented, so we add stuff like squid. If I actually put this, you can see the response. The fishes will immediately love it. I can go anywhere. Let us go to some other हाँ tanks पीछे। and यस यस। they immediately go for it, and ये already खा के बैठे हैं हाँ because the ingredients are so pure and ash content single digit में रहेगा हमारा। ओके। No, 7, 8, 9% मैक्सिमम, बिकॉज वो सर्कमफ्लेक्स प्रोसेस में ऐश निकालते हैं हम लोग। लेट अस गो एंड गो ऑन फीडिंग सम ऑफ दीज गाइस टू ये सी द देखिए। रेस्पॉन्स। अल्बाइनो हैकिलीज है यहाँ पे, ये भी फटाफट अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं खाना और विद इन फ्यू डेज और आप इन पे ग्रोथ और कलरेशन भी देख सकते हो, अच्छा आएगा। दे जस्ट बीन फेड इन द मॉर्निंग। या लेट अस गो, इनको भी थोड़ा देते हैं। ये देखिए, दे शुड इमीडिएटली सेंस एंड रन फॉर इट। तो ये देखिए ग्रीन टेरर भी आ गया फटाफट खाने को। हाँ, इनको अभी ये पहली बार, आई थिंक दीज गाइस आर बीइंग फेड दिस, Yeah, देन एक बार एक्सेप्टेंस आ गया। हाँ Look at this now. फुल अटैक कर रहे ये हैं। पहली बार इनको ये खिला रहे हैं हम लोग। हाँ लुक एट द रेस्पॉन्स। तो इसमें वैसे कितना है प्रोटीन परसेंट और क्या है इसमें? ये है आपका, ये देखिए ये फीड कर रहे हैं हम लोग सिकलेट ओमनी चाव और थोड़ा हर्बी भी देते हैं इनको, ये हर्बी चाव है। because हाँ cichlids also need a lot of algae content because they're grazers. हाँ ये हर्बी फीड करते हैं इनको। ये टैंक को ये पहली बार दिया जा रहा है, बाय द वे दैट्स द रीजन। उनको पहले वो यस दे टुक हाँ 10-15 सेकेंड्स टू एक्नॉलेज कि ये फूड है करके। हाँ। और दूसरा वाला जो पैकेट है ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये कौन सा था? हर्बी। दिस इज हर्बी चॉ। अच्छा, तो ये अपने मलावी सिकलेट्स को दे सकते हैं स्पेसिफिकली। मलावी और एनी ऑफ द अफ्रीकन सिक्लिड्स फॉर दैट मैटर, दे आर प्राइमरली लेक ग्रेजर्स। हाँ तो उनको हर्बी और कंटेंट ज़्यादा लगता है। नाउ ऑस्कर्स हो गए या फिर ये शिवराम को भी दे सकते हैं। इनको एक्चुअली दे आर नॉट प्राइमरली herbivores, so let us Yeah. do an experiment. हाँ Omni बाद में देते हैं, let us give them herbie first because our herbie हाँ is not completely herbivore only. We include stuff like spinach, kale, cabbage and other things, हाँ but we spirulina। also add multivitamins and fish oil. Okay। Gut clean होना जरूरी- बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। So let us give them something which they should not be enjoying. हाँ ये उनका खाना नहीं नहीं है, है। वो डालो तो झपटेंगे ये लोग। हाँ। I don't know whether these guys have been feeding on this or not. वो देखो वो भी वो लोग This is not their food also technically. हाँ, ये भी फटाफट खा रहे हैं। तो इनको ये थोड़ा देते हैं, उसके हाँ। बाद we'll give them अभी ये omni देते हैं, हाँ which is more no carnivore content. यस Now look at what happens. हाँ They have not eaten their previous food. थोड़ा मतलब वो हाँ, दिख पहले रहा है। जो सुबह खेला, but they are going and finishing this off. अभी responsible, they'll go mad. Now they'll go mad because they are smelling the squid. यस जो उसमें squid है, हाँ they are smelling it. Look at these guys now. ये देखिए ये तो एकदम मारामारी शुरू हो गई यहाँ पे। शुरू हो
और ये एकदम अच्छा साइज भी रखा है, एकदम ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है इनका। And let us try this experiment. या देख, फ्लावर हॉर्न इज ऑल्सो टेक्निकली a cichlid, no? या तो फ्लावर हॉर्न फूड तो यू सीन हाउ जो फ्लावर हॉर्न जो हमारा फूड जिस हिसाब से खाता, फ्लावर हॉर्न फूड जो है, हाँ आज एक काम करते हैं, ये फ्लावर हॉर्न्स को ना हम लोग ओमनी सिक्लेट खिला के देखते हैं। यस यस। फूड प्रोफाइल तो मैच होगा इनका, लेट अस सी हाउ दे रिएक्ट। ये देखिए, इसे फटाफट खा लिया है, ये देखिए। फिशेस फटाफट फ्लावर ऑन भी सो है। हमारा फ्लावर हॉर्न फूड जो है दैट इज प्राइमरली टू इंक्रीज द साइज, कॉक एंड द Head, ओवरऑल हाँ। शिमर विमर के लिए, हाँ। बट वो दाने बड़े हैं। यस तो आपके फ्लावर हॉर्न अगर छोटे हैं, यू कैन एक्चुअली फीड देम ओमनी सिक्लेट्स। ओके। ये नीचे भी जाके खा रहा है, देखो यहाँ पे कुछ पैरेट्स भी दिखे थे मुझे, आई डोंट नो वेदर दे आर हियर। लेट अस सी Yes, हाउ yes. ऑस्कर्स बिहेव, नो, बिकॉज सबका चहीता फिश है वो। पैरेट फिशेस भी है, पैरेट भी है। ये देखो, ऑस्कर्स भी फटाफट खा रहे हैं। लेट अस, इनको अभी ये टाइम लगेगा फॉर देम टू एक्नॉलेज दिस एज फूड, बट हाँ। वंस दे एक्नॉलेज, फाइट करना शुरू करेंगे। यस यस। सी इन्होंने तो फटाफट खत्म कर लिया ये टैंक को। ये देखिए। they'll go mad. यस। स्मॉल साइज। Let's give it to copper. Copper Oscars love this. यस। Look at this madness going on. हाँ अब see now they have acknowledged this as food. कैसे आ गए देखो अभी. Now they'll go mad. या And ये टेस्ट होता, कोई भी अच्छा जब फूड, फिश फूड होता ना, आप पहली बार जब खिलाते हो, वो कितना जल्दी दैट फिश एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट्स दैट फूड। अगर प्योर है वो इमीडिएटली ऐसे झपटेगा। हाँ लाइक ये फिशेस को ये पहली बार दिया जा रहा है, वहाँ के फिशेस को आई थिंक दे आर फीडिंग हाँ। नो these packets. Let us see these guys. यस, ये देखिए। है ना, it's so amazing ना जब फिशेस ऐसे झपट के खाते हैं तो। हाँ, कुछ पैरेट फिशेस को भी फीड करते हैं हम लोग। पैरेट फिशेस के लिए कहाँ स्पेसिफिक पे? कॉर्नर पे है। अच्छा है, ओके। सी पैरेट को क्या feed हमेशा करना चाहिए हर भी चाव में? नो, ओमनी चाव Omni chow, प्रिफर्ड है, ओके ओके, बिकॉज उनको चलता है। दे नीड लिटिल बिट ऑफ नो मीटी सब्सटेंस, ओके बट अलॉन्ग विद दैट अगर आपको नेचुरल कलरेशन लेके आना है, हाँ। तो हर्बी चाव आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, दे विल एक्सेप्ट। ओके, सो आप look at they are picky दोनों ले eaters. सकते हो या? They're picky eaters, but see, look at the way they are accepting it. हाँ, वो खा रहे हैं And these are true to the nature. They're not been colored or something. या। पैरेट फिशेस भी No, these are proper yellow parrots. या येलो पैरेट्स है। तो मैं दोनों को मिक्स ही albino भी करके है। देना। आई एम एक्चुअली मिक्सिंग बोथ एंड फीडिंग देम। फुल पार्टी चालू है। फुल पार्टी। तो फिशेस आप देख सकते हैं अच्छी तरह से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सब फूड, और भी कुछ दूसरे फिश फूड हम देखते हैं अभी। सो ये देखिए ऑरियम प्रो, ये स्पेशलाइज सिंकिंग फूड है ना ओरांडास के लिए और गोल्ड फिशेस के लिए। रैंचो, ओरांडास, जनरल गोल्ड फिश के लिए। गोल्ड फिशेस अगेन टेम्परामेंटल होता है, किसी किसी को फ्लोटिंग अच्छा लगता है, किसी किसी को सिंकिंग अच्छा लगता Yes, है, yes, और mood में भी सिंकिंग रहता थोड़ा है। स्लो सिंकिंग हो तो स्टिमुलेटिंग रहता है। Okay. तो दिस इज द सिंकिंग अच्छा, वर्जन। ओके। नो, रैंचोस के जनरली आई लाइक फ्लोटिंग, बट ये लेट अस सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। ये देखिए फटाफट उसने खा लिया नीचे गिरने से भी पहले। दे विल फिनिश इट ऑफ। यस यस। सो ये सिंकिंग वाला भी बहुत अच्छा है, ऑरियम प्रो। एंड